उत्तरप्रदेश থেকে পরীক্ষার্থীরা ভিড় করছেন বাংলায়। নবম দশমের মতো একাদশ দ্বাদশও ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। আজ একাদশ দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগে পরীক্ষা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘ 7 বছর ধরে যোগী রাজ্যে বন্ধ শিক্ষক নিয়োগ। বাংলার উপরেই ভরসা ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের। আমাদের প্রতিনিধি কথা বলছিলেন এই পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে। তারা কিন্তু বলছেন যে দীর্ঘ 7 বছর ধরে সেখানে সরকারি চাকরি নেই, শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নেই, এমনই অভিযোগ তাদের। সেই জন্য এখানে যখন ভ্যাকেন্সি হয়েছে, এখানে যখন শূন্যপদ বেরিয়েছে, পরীক্ষা হচ্ছে, তারা ফর্ম ফিল আপ করেছেন, পরীক্ষা দিতে এসেছেন। অন্তত আশা রাখছেন এই বাংলা থেকে তারা কোনো কাজের একটা দিশা খুঁজে পাবেন। আর এই মুহূর্তে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির ছবি আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, কারণ 10টা থেকেই সেখানে একে একে পরীক্ষার্থীরা তারা প্রবেশ করতে শুরু করবেন এবং 12টা থেকে পরীক্ষা গ্রহণ শুরু হবে। সরাসরি সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সেখান থেকে প্রতিনিধি রেশমি দাস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। রেশমি, তুমি সকালেও পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছিলে। একাধিক পরীক্ষার্থী তারা ভিন রাজ্যের, আশা রাখছেন অন্তত পরীক্ষা তারা ভালোভাবে দেবেন, একটা সুরাহা হবে। এই মুহূর্তে 10টা থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে একে একে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশ করবেন। ছবিটা কি দেখতে পাচ্ছ? একদম দেখো, আজকে একাদশ এবং দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় 2,45,500 জন এবং গত পরীক্ষায় অর্থাৎ নবম এবং দশম পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে 10% ছিল ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থী। এইবারও কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও ভিন রাজ্যের যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা তা কিন্তু লক্ষণীয় এবং 478টি পরীক্ষা কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা। কলকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজে মোট 700 জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে। আর কিছুক্ষণ মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানো হবে। 10টা থেকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করানোর কথা। একেবারে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ভেতরে চলছে। যারা পুলিশ আধিকারিকরা তারা উপস্থিত রয়েছেন এবং কলেজের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তারা উপস্থিত রয়েছেন। পাশাপাশি মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে চেক করেই কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করানো হবে এবং পেনের ক্ষেত্রে কিন্তু বলা হচ্ছে স্বচ্ছ পেন আনতে, নচেত পেন কিন্তু দেওয়া হবে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে। এবং জলের বোতল কেউ যদি আনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বচ্ছ জলের বোতল আনতে হবে। ইতিমধ্যে গত পরীক্ষায় আমরা যেই ছবি দেখেছিলাম, বাউন্সার রাখা হয়েছিল এই পরীক্ষা কেন্দ্রে, এইবারও কিন্তু বাউন্সার রাখা হয়েছে এবং যারা পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করার জন্য। দিদি, কোথা থেকে আসছেন? বালি থেকে। আচ্ছা, কতটা আশা রয়েছে? কারণ এর আগে দেখা গিয়েছিল 2016-র যে পরীক্ষা, সেখানে নিয়োগ দুর্নীতি হয়েছিল। দেখুন, আশা রেখেই তো পরীক্ষা দিতে হবে, তো এখনই নিরাশ হতে চাইছি না। দেখা যাক কি মনে হচ্ছে, স্বচ্ছতা বজায় থাকবে? দেখা যাক, সুপ্রিম কোর্ট যেহেতু অর্ডার দিয়েছে, আশা রাখছি, দেখা যাক। দিদি, কতটা আশা রাখছেন স্বচ্ছতা? কিছু বলতে পারছি না এখন। কতটা আশাবাদী পরীক্ষা দিতে এসেছেন? এখানেই যদি রেশমি একটু কথা বলা সম্ভব হয়, বাকি যারা পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন, কারণ সকালেও তো তুমি কথা বলছিলে, তার মধ্যে অধিকাংশই ভিন রাজ্যের, তাদের সঙ্গে একটু যদি কথা বলা সম্ভব হয়। অভিযোগ সামনে এসেছিল। আমি 100% আশাবাদী, কারণ সুপ্রিম কোর্টের নজরদারি রয়েছে। সৌম্যজিৎ, আরেকবার প্রশ্নটা যদি করো। একটু যদি ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এবং যারা আসছেন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, তারা পরীক্ষা দিতে আসছেন, একটু সেই রকম পরীক্ষার্থী তাদের সঙ্গে যদি কথা বলা সম্ভব হয় যে কেন তাদেরকে এই মুহূর্তে বাংলায় আসতে হচ্ছে পরীক্ষা দিতে। একদম দেখো, ভিন রাজ্যে যারা পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। দিদি, आपका नाम? नाजिया। कहाँ से आए हैं आप? मैं दमदम। दमदम से। आपका नाम? मैं तो सोनम सिंह। कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ से इतना दूर एग्जाम देने पहले आपने एग्जाम देने के लिए आए हैं? हाँ। দেখো, লখনৌ থেকে এসছেন, তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং আরও যারা পরীক্ষার্থীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। যারা ভিন রাজ্য থেকে পরীক্ষার্থীরা এসছেন তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। কোথা থেকে এসছেন? कहाँ से आए हैं? यूपी से। यूपी से बंगाल में क्यों आना हुआ? यूपी में वैकेंसी नहीं निकल रही है, इसलिए कि परीक्षा देने के लिए? जी। बंगाल के ऊपर भरोसा है? बंगाल के ऊपर भरोसा है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से। बिहार से? नहीं, प्रयागराज से। यूपी से। प्रयागराज से इतना दूर क्यों आना हुआ? अब यहाँ एग्जाम है, हम लोग का एग्जाम देने आए हैं, जो है वैकेंसी आई थी। यूपी में वैकेंसी नहीं आ रहा है अब? अभी तो आई है, परीक्षा भी उसका लेट हो रहा है। डेट टल गया था, पीछे हुए डेट। कितने साल पहले परीक्षा हुई थी? लास्ट एग्जाम कब हुई? 2021 में हुआ था,
2021 का टीजीटी हुआ था, पीजीटी का। फिर कोई परीक्षा नहीं हुई? उसके बाद टीजीटी का वैकेंसी फिर बाद 22 में आया तो परीक्षा नहीं हुआ है। क्यों परीक्षा नहीं हो रहा है इतने साल जैसे कई बार जैसे डेट आया, डेट कैंसिल हो गया था, अब डेट लगा हुआ है। क्यों कैंसिल हो गया था? अब वो तो सरकार भाई अपने हिसाब से जो है कैंसिल किया है, डेट आगे पीछे किया उन्होंने अपने हिसाब से। आप कहाँ से आए? यूपी आजमगढ़ से। देखा जा रहा है यहाँ में अर्थात ये परीक्षा केंद्र में बहुत सारे लोग यूपी से आ रहा है। यूपी से बंगाल में परीक्षा देने के लिए आप लोग आ रहे हैं, क्यों? इसलिए कि वहाँ पे थोड़ा जो वैकेंसियाँ आती हैं बहुत कम मात्रा में आती हैं। हाँ, जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, इस तरह से आती हैं। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आती हैं, इसलिए यहाँ पे आना हम लोग पड़ा है। यूपी में वैकेंसी ज़्यादा नहीं है? यूपी में वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती हैं, बहुत कम आती हैं। और यहाँ पे बाहरी राज्यों में ज़्यादा आती हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहरी राज्य में फॉर्म भरते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं। यूपी में प्रोग्रेस कैसा हो रहा है वहाँ की सरकार का? अभी तो फिलहाल ठीक ही है, लेकिन थोड़ा भ्रष्टाचार थोड़ा ज़्यादा फैल गया है। यूपी में भी भ्रष्टाचार हो रहा है? यस मैम, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा यूपी में भ्रष्टाचार है। बाबा जी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, बाबा जी मतलब जोगी जी? जोगी महाराज वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। कौन सा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में करप्शन भी है। शिक्षा के क्षेत्र में आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर? नौकरी नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। वो लोग नेतागिरी बस अपना 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई वहाँ पे। वहाँ की सरकार, जोगी राज्यों की जो सरकार है, ठीक से काम नहीं कर रहा है। भी है बीजेपी जहाँ भी है, हर जगह वही स्थिति है। बीजेपी सरकार जहाँ भी है। जोगी राज्य में उन्नति ठीक से नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बस बाबा राशन बांट के वैकेंसी कैसे दे नहीं रहे हैं, वोट ले रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं। बंगाल के ऊपर भरोसा है? बंगाल पर पूरा भरोसा है। आपके बंगाल के ऊपर भरोसा? एकदम यहाँ का तो बहुत अच्छा है सरकार। अच्छा, 2016 में जो परीक्षा हुई थी, शिक्षक नियुक्त की परीक्षा, उस परीक्षा में भी भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी। 26,000 का जो नौकरी वो चला गया है, इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? कहाँ का? यहाँ पर करप्शन की बात सामने आई थी। नहीं, वो तो गलत तरीके से जब नियुक्ति होगी तो जांच होने के बाद जो गलतियाँ पकड़ी जाएंगी, उसमें तो कोई भी सरकार रहेगी उसमें हटाएगी। गलत चीज रहेगी और सही से हो रहा है। नौकरी बातिल हो गया है यहाँ पर 26,000 की, तो आप फिर भी भरोसा रख रहे हैं बंगाल के ऊपर? भरोसा पूरा भरोसा किए हैं। अच्छा, कितने देर परीक्षा नहीं हुई यूपी में? यूपी में 2021 में 2018 के बाद वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, इसलिए आई भी उसको कराया नहीं, एग्जाम नहीं कराया, कैंसिल कर देते हैं। कौन सा परीक्षा की वैकेंसी आई थी 2018 के बाद? शिक्षा विभाग का आया था और भी कई विभागों के आए थे। 50,000 पद आया कि नहीं? यूपी में 1.5 लाख प्राइमरी में भर्ती सीटें खाली हैं, 1.5 लाख से ज्यादा ही पदे हैं, लेकिन आज तक भर्ती नहीं दे रहा है। वहाँ तो स्कूल ही बंद कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल ही बंद कर रहे हैं। स्कूल बंद हो रहा है? कितना सारा स्कूल बंद हो रहा है यूपी में? गवर्नमेंट का स्कूल बंद कर रहे हैं। 40,000 बंद कर दिए, 40,000 विद्यालय बंद कर दिए। आप कहाँ से आए हैं दादा? यूपी से आए हैं। यूपी से बंगाल में इतना दूर क्यों आना हुआ? यहाँ पे एग्जाम था प्रवक्ता का, इसलिए आए। यहाँ पे वैकेंसी थी और यहाँ पे हमारे यहाँ से ज़्यादा प्रोग्रेस बहुत तेज चल रहा है कि फॉर्म भरो, 1-2 महीने के अंदर ही एग्जाम करवा लेते हैं, फाइनली सिलेक्शन देते हैं। जो भी है प्रोग्रेस फास्ट चलता है। हमारे यहाँ जो है यूपी में आज फॉर्म भर रहे हैं तो 2 साल 5 साल बाद एग्जाम कब होगा उसका कुछ नहीं है। और एग्जाम का डेट देने के बाद भी उसको निरस्त कर देते हैं कि नहीं अभी आगे बढ़ा देते हैं, डेट कैंसिल होता है। आप बोल रहे हैं एग्जाम की डेट देने के बाद भी कैंसिल हो जाता है, क्यों? ये गवर्नमेंट अपना सेटिंग बनाती है, बना नहीं पाती है तो कैंसिल कर देती है। आप बोल रहे थे सुबह में वैकेंसी दे रहा है और शाम में कैंसिल हो गया, इसके बारे में क्या बताएं? जैसे उस डेट देते हैं एग्जाम का, अच्छा, तो 1 हफ्ता, सप्ताह, 1 मंथ का देते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, फिर कैंसिल, यही सब चलता है। हम लोग तैयारी करते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज में कोचिंग भी करते हैं, लेकिन कर करके बड़ी स्थिति खराब। দেখতে পাচ্ছ যে ইউপি থেকে অর্থাৎ যোগী রাজ্য থেকে বহু পরীক্ষার্থী তারা এসেছেন এবং যোগী রাজ্যতে কোনো রকম উন্নতি হচ্ছে না, যোগী রাজ্যে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা নেই তা জানাচ্ছেন যোগী রাজ্য থেকে। একেবারে বোঝা যাচ্ছে রেশমি যে দীর্ঘ 7 বছর ধরে কিন্তু উত্তরপ্রদেশে সেখানে যোগী রাজ্যে চাকরি নেই, শিক্ষকরা তারা বেকার হয়ে পড়ে রয়েছেন এমন একাধিক অভিযোগ করছেন যারা শিক্ষা
জন্য শিক্ষক নিয়োগের জন্য যারা পরীক্ষা দেবেন সেই পরীক্ষার্থীরা, সেই জন্য তারাই বাংলায় আসছেন। ভিন রাজ্য থেকে পরীক্ষার্থীরা এসে আজ পরীক্ষা দেবেন, আশা রাখছেন বাংলায় কোনো একটা ব্যবস্থা হবে তাদের। আপাতত ধন্যবাদ জানাচ্ছি রেশমি তোমাকে।